क्या आना शुरू होगा इसमें एडमिट करो। हाँ देखिए वो लेंगे ना लिस्ट जी लिस्ट के साथ उसको तो नया बच्चा हो तो प्री रिसर्च के साथ सही है सर। वो बताइए। वही है सर हाँ। वही है ना जो पहले आते वही नंबर आते हैं शायद हो जाए। कितने आए सर 6 हो गए 7 हो गए। 7 हो गए। म्यूट कर दो सर म्यूट कर दो। हाँ इसको भी स्पीकर जी कर दो। ओके वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 10 we are doing question number 10 5x minus 2y equal to 15 this is question 1 15x minus 45 is equal to 6y this is equation 2 we will find the value of x or y in any one of the two equations, one or two, and that will be substituted in the second equation. If we are finding from the first equation, if we are finding the value of x or y from the second equation, that will be substituted in the first equation. So, okay. So, I think we will find the value from the second equation. That will be easy for us. From the second equation, we will find the value of y. So, from the second equation, it is 6y equal to 15x minus 45. This is from the second equation. So, y will become 15x minus 45 upon 6. 15x minus 45 upon 6. So, can we simplify this one? It cannot be further simplified. 6 cannot be removed. So, therefore, this is equation 3. Equation 3 is found from the equation 2. This is found from equation 2. Therefore, it will be substituted in equation 1. So, equation 3 will be substituted in equation 1 because this value is calculated from equation 2. Yes, come.
This is question number 10. 5x minus 2y equal to 15. 15x minus 45 equal to 6y. This is equation 1, this is equation 2. We have to calculate the value of x or y from any one of the two equations. So I think it is easy for us if we take equation 2 and we find the value of y. Because 6y is already equal to 15x minus 45. This is equation 2. So divided by 6. So 15x minus 45 divided by 6. This is the value of y. It will be substituted in equation first, equation 1, because it is calculated from equation 2. This value of y is extracted from equation 2, therefore it will be substituted in equation 1. Substituting y is equal to 15x minus 45 upon 6 in equation 1. y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे इक्वेशन 1 से. So इक्वेशन 1 है 5x minus 2 into the value of y 15x minus 45 divided by 6 equal to 15. इसमें x को रिप्लेस कर दिया, y को रिप्लेस कर दिया उसकी वैल्यू से जो इक्वेशन 3 में हमने फाइंड आउट. अब इसको सिंपलीफाई करेंगे. 2 1 are 2, 2 3 are 6. तो 5x minus 15x minus 45 upon 3 is equal to 15. एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का. डिनोमिनेटर हमारे पास एक ही है 3, तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाइंग बाय 3 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 into 5x minus 3 into 15x minus 45 upon 3 equal to 3 into 15. Each and every term is multiplied by 3. So it will become 3 is cancelled by 3. That is 15x minus 15x minus minus plus 45 equal to 45. So 15x minus 15x 0. 45 equal to 45. तो क्या मतलब हुआ इसका? Infinite solutions. Infinite solutions. तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमें वैल्यू ऑफ इन्हीं निकालनी है. तो इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन कोई एक वैल्यू नहीं होगी. किसी भी इक्वेशन के आंसर जो है वो मेथड पर डिपेंड नहीं करते. बताइए याद रखिए. ये नहीं कि कोई मेथड दूसरे मेथड से करेंगे तो हो सकता है कोई दूसरा आंसर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता. दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड. कोई भी मेथड यूज करें आंसर यही आना है, लेकिन मेथड सही वाला हो. यदि वो गलत सा मेथड यूज करते हैं तो जाहिर डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे. एक सही आंसर होगा, एक गलत आंसर होगा. सही मेथड से जो आंसर होगा वो सही होगा, जो गलत मेथड से करेंगे वो गलत हो जाएगा. या कहीं आपने
मिस्टेक कर दी क्वेश्चन, तो दूसरा आंसर आ जाए, वरना आंसर सेम आता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिक्स। इसको फर्दर करने की जरूरत नहीं है, यहीं तक इसको लिख दे बस, आंसर आपका यहीं पर हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप दोनों बेटा मास्क लगाइए, आप भी आप भी। क्वेश्चन नंबर 11, टू एक्स minus 5y equal to 7. Two equal to 3x minus 2.5y. Two equal to 3x, sorry. ये हमारे पास दो इक्वेशंस तो किसी एक से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे इनपुट कर देंगे। तो अगर हम पहले वाली से निकाल लें y की वैल्यू 2x minus 5y equal to 7, ये इक्वेशन 1 है, इससे हम सॉल्व फाइंड आउट कर देंगे x की वैल्यू। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5y उधर जाएगा, 5y प्लस 7, और x इज इक्वल टू 5y प्लस 7 अपॉन 2, ये x की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन 3 कहलाई, और ये हमने इक्वेशन 1 से डिराइव की है, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट की जाएगी। इक्वेशन 1 से हमने डिराइव किया, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट की जाएगी। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, x is equal to 5y plus 7 upon 2 in इक्वेशन 2। जिससे ड्राइव की है उसी में सब्स्टिट्यूट मत कर दीजिएगा, सॉल्व नहीं होगी। इक्वेशन 2 है हमारे पास, 2 इज इक्वल टू 3, x की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, 5y प्लस 7 अपॉन 2 माइनस 2.5y। ओपन करेंगे, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 15y प्लस 21 अपॉन 2 माइनस 2.5y। देखिए वे y में सिर्फ एक वेरिएबल में इक्वेशन बन गई, एक वेरिएबल।
अब इसका हमने डिनोमिनेटर खत्म करना है। डिनोमिनेटर हमारे पास 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट। टू इंटू टू ब्रैकेट में लिखा करने जाता है, 2 इंटू 15y प्लस 21 अपॉन माइनस 2 इंटू 2.55। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 4 इज इक्वल टू 15y प्लस 21 माइनस 5y। 21 उस तरफ जाएगा। 4 माइनस 21 is equal to 15y minus 5y is equal to 10y। 10 से डिवाइड कर दें, y is equal to 4 minus 21 will be minus 17 divided by 10. The answer is minus 1.7. Divide कर देंगे। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी substituting y is equal to minus 1.7 in equation 3. This x will become 5 into minus 1.7 plus 7 upon 2. It will become 5 से multiply कर दे, 5 7 are 35, 5 1 is 5 and 8, 8.3 minus 8.3 plus 7 upon 2. ये minus 1.5 upon 2. It will become minus 0.75. ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं minus 1.7. तो ये हमारे पास आंसर आ गया x is equal to minus 0.75, y is equal to minus 1.7. Question number 12. Four p minus 3q is equal to 4 2q plus 1.5p equal to 20.
4p minus 3q is equal to 4. Two q plus 1.5p equal to 20. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, p और q है, तो x और y की जगह क्या है, p और q. हमने p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तो इसमें हम करते हैं दोनों मेथड हम पे अप्लाई करते हैं. एक चीज हम एलिमिनेशन से निकालेंगे, दूसरी क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन से निकालेंगे. तो कोई एक देख लेते हैं, हम क्यों निकाल लेते हैं, हम p निकाल लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. p की वैल्यू निकाल लेते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. तो p की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, p के कोएफिशिएंट चेक करेंगे. फर्स्ट इक्वेशन में p का कोएफिशिएंट 4, दूसरी इक्वेशन में p का कोएफिशिएंट 1.5. तो ये डेसिमल में निकालना पड़े. q को एलिमिनेट कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं, q को, वो आसान होता है. q यहाँ 3 है और यहाँ क्या है, 2 है. तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से कर देंगे. तो इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, q को एलिमिनेट कर देंगे. इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2. ये हो जाएगा 8p माइनस 6q इक्वल टू 8. इसको हम 3 से कर देते हैं. इक्वेशन 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये हो जाएगा 6q प्लस 4.5p 60. अब q के हमने कोएफिशिएंट इक्वल कर लिए, यहाँ पे 6q है, यहाँ पे 6q है. अब इनके साइन चेक करेंगे. इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है, तो हम ऐड कर देंगे. अपोजिट साइन होंगे तो हम ऐड कर देंगे. प्लस का साइन यहाँ डालेंगे. एट पी प्लस 4.5p, it will become 12.5p. Minus 6q plus 6q 0. 8 plus 60, 68. P will become 68 divided by 12.5. The answer is 5.44. ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई. ये चूंकि हमने दोनों इक्वेशन से निकाली है, तो किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके q की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये चूंकि हमने दोनों इक्वेशन यूज की है ये p की वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए ये वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं. हम सेकंड में कर लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि q पॉजिटिव है, यहाँ उसमें नेगेटिव है, उसको चेंज करना पड़ेगा फिर साइन. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2, substituting p is equal to 5.44 in equation 2. Equation 2, 2q plus 1.5, p की जगह ये वैल्यू 5.44 is equal to 20. p की जगह ये वैल्यू 5.44 into equal to 20. तो 2q 1.5 से इसको मल्टीप्लाई करें,
जी 8.16 8.16 equal to 20. 2q is equal to 20 minus 8.16. 11.84. Q is equal to 11.84 divided by 2. 5.92 Q की वैल्यू आ गई। आंसर लिख देंगे हम P is equal to 5.44, Q is equal to 5.9. तो इस क्वेश्चन में हमने दोनों मेथड यूज किए। पहले हमने p की वैल्यू निकाली एलिमिनेशन मेथड से और q की वैल्यू निकाली सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हम दोनों मेथड भी इकट्ठे यूज कर सकते हैं। पहले कोई एक मेथड यूज करके एक की वैल्यू निकाले, वो वैल्यू किसी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम दूसरी वैल्यू निकालें। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपका कौन किस किस्म का है, किस तरह आसानी से सॉल्व हो सकता है, किस तरह आसानी से वो सॉल्व हो सकता है, तो उस तरह क्वेश्चन डिपेंड करता है। क्वेश्चन 13 हम करते हैं। फाइव प्लस 2p is equal to 6q. Five p plus 8q is equal to 25. किसी एक से हम किसी एक चीज की वैल्यू निकाल देंगे तो ये किसी भी इक्वेशन से। अब बताइए क्या निकाली जाए, किसकी वैल्यू निकाली जाए और किस इक्वेशन से। जी जी क्यू की निकाली जाए कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट से। चलिए फर्स्ट से हम इक्वेशन क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगी। तो ऑलरेडी क्यू एक साइड पे है, तो 5 प्लस 2p इज इक्वल टू 6q। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसको हम क्यू को इस तरफ ले आएंगे, इसको उस तरफ ले जाएंगे। तो दैट विल बी 6q इक्वल टू 5 प्लस 2p।
6 से डिवाइड कर दें। अच्छा, एक चीज का और देख लीजिए, मैं बता दूं कि बात बच्चे जो कहते हैं कि इसको इस तरफ ले आया, आपने इसको उस तरफ ले गए, साइन क्यों नहीं चेंज की? तो ये भी एक क्वेश्चन बच्चों का आता है। तो वजह उसकी ये मैं बता रहा हूँ आपको, अगर पूरी की पूरी इस चीज को उस तरफ रख दे, उसको इस तरफ रख दे, तो फर्क नहीं पड़ता, कोई साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। उसका पार्शियली आप चेंज करते हैं, यदि इसमें से सिर्फ इसको उस तरफ ले जाते हैं और उसको इस तरफ ले आते हैं, इस पूरे को बजाय इसको सिर्फ ले जाते हैं और फिर इसको इस तरफ ले आए, फिर आपको चेंज करने पड़ेंगे साइन। ये +2p उस तरफ जाएगा तो -2 और 6q इस तरफ आएगा -6q, फिर आपको साइन चेंज करने हैं। लेकिन अगर पूरे के पूरे को जैसे यूं समझे कि एक हमारे पास तराजू है, तो उसके एक तरफ बाट रखे हुए और एक तरफ कुछ चीज है। आप एक तरफ बाट रख दे, एक तरफ आप चीज रख दे, तो वजन वही रहेगा। आप पूरी चीज को उस तरफ कर दे, बाट को उस तरफ कर दे, तो फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए इक्वेशन जो है ये जस्ट लाइक अ बैलेंस है। तो इसमें हाँ, अगर आप कुछ पार्शियली उसमें से निकालेंगे, आप उसमें से एक बाट कम कर रहे हैं, तो वो आपको उस तरफ से चीज भी कम करनी पड़ेगी, तब वो बैलेंस होगी, वरना नहीं होगी। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास इन टर्म्स ऑफ पी, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम है। ये आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 से लिया था, ये इक्वेशन 1 से हमने बनाई है इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग Q is equal to 5 plus 2p upon 6 in equation 2। इक्वेशन 2 है हमारे पास 5p प्लस 8q, q की जगह ये वैल्यू 5 plus 2p अपॉन 6 इक्वल टू 25। 2 से कैंसिल करते हैं, 4 3 5p, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 20 प्लस 8 p अपॉन 3 इक्वल टू 25। अब 3 को भी हमने खत्म करना है, 3 को खत्म करने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाले 3 को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ब्रैकेट में लिखा करें 3 इंटू 5p प्लस 3 इंटू 20 प्लस 8p अपॉन 3 इक्वल टू 3 इंटू 25। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 15p प्लस ब्रैकेट ओपन कर देंगे 20 प्लस 8p इक्वल टू 75। 15 प्लस 8 23p is equal to 75 minus 20, that is equal to 55. So p will be equal to 55 divided by 20. Two point something. 39. ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई, ये हम इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास q की वैल्यू आ गई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर
Q is equal to 5 plus 2, 2.39 upon 6. Okay. 4.78 upon 6. Q is equal to 9.78 upon 6. One the 6 Q is equal to 1.63. अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम इसको वेरीफाई भी करते हैं हम इसको वेरीफाई करते हैं V is equal to 2.39. Q is equal to 1.6. इसको हम वेरीफाई करते हैं कहीं ऐड होने वाला एंड हो गया होने वाला 1 मिनट एक मिनट